Hello everyone, welcome to AptPlus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and the Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So let's get started with today's topic. Today is 20th of August. The first topic is 5th editions of Defense India Startup, which was organized by the Ministry of Defense. Second, new species of frog has been discovered in Arunachal Pradesh. Third, record sugar export helps reduce cane dues. So the dues which was pending with the farmers has been substantially cleared. The second last, center monitoring the booster shots for the COVID-19. Basically, the decision that was taken in the US. India would be considering that also. There are other level of inspections and approval that has to come from the expert. And the last is back to basics. So this is an editorial that talks about the educations, right? So apart from all the news and editorial discussion, at the end of this video, मैं आपके साथ कुछ MCQs के questions discuss करूँगा, and these questions would be based on current affairs, right? So make sure you practice this question so that it can help you the real examination of the civil services prelims, and these questions would definitely build a good concept and contemporary news that was there would be covered through these questions. And a small announcement that we are organizing a live orientation classes on public administration. This is for all the aspirants who are looking forward for public administration as an optional or in general. This can help you in the GS paper as well, right? So this would be conducted by Mr. Sachin Jain. He is an IRS officer. And this is scheduled for 21st of August. So what you have to do, आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे रेफर करना, उसमें मैंने एक डेडिकेटेड लिंक दिए हुए हैं जहाँ से आप डायरेक्टली इसके लिए रजिस्टर कर पाएंगे. So do check it out, register yourself. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe AptPlus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Now starting the news session with the first news, that is 5th edition of Defense India Startup. This is important for your general studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors. So what actual decision was taken by the Ministry of Defense? Ministry of Defense ने recently launched किया है 5th edition of Defense India Startup Challenge, right? जिसको DISC के नाम से भी जाना जाता है in short form. If in exam it is being asked what is DISC, तो आपको ये full form भी पता होना चाहिए. So under this, innovations for defense excellence and defense innovation organization would take place, और जिसकी पूरी पर्पस है is to achieve self reliance. किस चीज में self reliance? जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, खास करके self reliance and foster innovations in technology development. First, किस किस सेक्टर में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी? दैट इज इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर्स. होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. जो इस पूरे डेस्क की मेन एम है इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना, साथ के साथ जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस है वो करना, राइट, and the development in defense as well as in the aerospace sectors, right? So these two are very important and significant sectors in India as far as defense is concerned. Now, क्या aim है इस तरह के challenge की? So it meant to achieve self-reliance, foster innovation and technology development in defense and aerospace. So जो मैंने आपको पहले बताया, that is only the aim. Now list of problems in defense startup. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हुई है डिफेंस स्टार्टअप्स में, उसके कुछ लिस्ट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से. दे हैव हाइलाइटेड सम ऑफ द प्रॉब्लम. सो 35 प्रॉब्लम्स हैव बीन included. This include 13 from the services and 22 from the defense public sector undertaking. जो DPSUs है उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आई है. That was unveiled and DISC 5.0. So this is 5.0. This is not new. And these problems are in the area of situational awareness, augmented reality, जिसको ARP कहते हैं, artificial intelligence, that is called AI, right? उसके अलावा AI के बाद aircraft trainer, non-lethal devices, 5G networks, underwater domain awareness, drone swarms and data capturing. So ये कुछ highlighted areas हैं जहाँ पे problems को highlight की गई. बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस डिफेंस स्टार्टअप में जो प्रॉब्लम्स थे उसको बताया.
Now, about Innovations and Defense Excellence Initiative. So, this is to promote innovation and technology development in defense and aerospace by engaging industries, चाहे वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हों, नए स्टार्टअप्स हों, जो इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं उनको रिसर्च और डेवलपमेंट जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं दैट वुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड. एंड इट विल फंड एंड मैनेज बाय द डिफेंस एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो DIO है वो इस सारे फंक्शंस को हैंडल करेगी एंड विल फंक्शन एज एन एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ DIO, राइट. सो दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव वुड वर्क. बेनिफिट्स की अगर बात करें IDEX की, तो ये प्रोवाइड करेगी एक फाउंडेशनल फॉर इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. R&D is something which is very important for defense and aerospace sectors. सो यहाँ पे इस इंडस्ट्री को इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी. मोर देन 80% स्टार्टअप जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सो दिस सेक्टर वुड बी अल्टीमेटली गेटिंग द बेनिफिट. इंडिविजुअल इनोवेटर्स होंगे अलग अलग कैटेगरीज में, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट and it would be funded and managed by Defense Innovation Organization, that is DIO. So if this is asked in examination की funding कहाँ से होगी, executive arm कौन से हैं, you have to say that is DIO. Now the other news, new species of frog discovered in Arunachal Pradesh. This type of news is very important for your prelims because this can be directly asked in the environment section, right? So if any animal or any species, any flora fauna has been discovered in India, it becomes very important for your examination. So this is important for the General Studies paper 3, conservation, environmental pollutions and EIA. So एक team of researchers basically from Delhi University, कुछ biologists थे WII की, that is World Life Institute of India, और नॉर्थ कैरोलिना म्यूजियम जो है नेचुरल साइंसेज USA की, उन्होंने कुछ एक नई स्पीसीज डिस्कवर्ड की है अरुणाचल प्रदेश में, और इस फ्रॉग को बोलते हैं कैस्केड फ्रॉग, राइट. इसकी अलग फैमिली है, अलग इसके नॉमेनक्लेचर है, मैं आपको आगे बताऊंगा. सो दिस न्यूली डिस्कवर्ड फ्रॉग हैज बीन नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस आदि ट्राइब, राइट. सो एक क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं कि आदि ट्राइब जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है. सो दिस इज इनहेबिट टू अरुणाचल प्रदेश, और इसी ट्राइब के नाम पे इस फ्रॉग के नाम रखी गई है आदि कैस्केड फ्रॉग, राइट. सो दीज टू फैक्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हियर, मेक श्योर यू नोट इट. नाउ द फाइंडिंग वेर पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, लंदन से मैं इसको पब्लिश की गई. इसकी टाइटल थी फाइलोजेनेटिक पोजिशंस ऑफ पुअरली नोन मोनेटिक एसिड इन Amylus monoticolica. This is the description of the new related species in the northeastern state. Now let's understand, this is the image of this frog, right? The newly discovered frog. You can see the image over here. Now let's understand what are the features of this frog and what is the nomenclature, right? So Addy cascade frog, the newly frog that was being named, इसको कहते हैं Amylopus edicola, right? So this is the name. Amylopus edicola is the name of the Addy cascade frog, right? And this is the hill home to Adi tribe. As I've told you, this is native to this region, so because of which the name has been given to this frog. Cascade frog की अगर बात करें, the name is so because their preference of a small waterfall or cascade flow in the hill streams. ये इस एरिया में इस तरह के सेटअप्स में रहते हैं, इस वजह से इनके नाम cascade frogs रखी गई है. So literal meaning of Adi is hill, right? This is a mountain top which researcher have said. And researchers said that the Adi hill would were the historical as a Abor hill also, which is there in the northeast only. And the new species were discovered by revitalizing the old Adi expedition century, which was done in 2018. उसके बाद इस जगह पे इस नाम जो nomenclatures हैं उस ट्राइब की बेसिस पे यूटिलाइज की जा रही है. Now बात करें Amylophus frog populations की, कहाँ भी ये present है. So this Amylophus is one of the largest group of the Ranidid frog. Basically Ranidid is currently 73 known species जो worldwide distributed है. अगर बात करें इसके distributions की, so this is there in the northern India, Nepal, Bhutan, China, Indochina and Malaya Peninsula. And the new species was identified on the multiple criteria, जहाँ पे external morphology, उसकी deoxyribonucleic acids DNA को देखी गई, और जो calling patterns है these were taken into considerations.
Now, क्या implications होंगे टेक्सोनॉमी पे, खास करके बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हो सकते हैं. सो स्टडी ने रिवील किया है जो सेंचुरी ओल्ड टेक्सोनॉमिक कन्फ्यूजन्स थी रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैस्केड फ्रॉग स्पीसीज वो बहुत हद तक खत्म हो गई है, क्योंकि जो एमोलोपस मॉन्टिकोला है दैट वाज डिस्कवर्ड इन द सिक्किम हिमालय 150 ईयर अगो. दिस इज नॉट न्यू, इसको पहले भी डिस्कवर्ड किया गया, बट वी डू नॉट हैव एनी डिमार्केशन और कोई स्पेसिफिक पिकुलर फीचर्स नहीं थी जहाँ पे इसकी अलग से आइडेंटिफिकेशन की जा सके. सो दिस डिस्कवरी हैव एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस ऑन द टेक्सोनॉमी. और जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे कि वहाँ के आदि ट्राइब्स, इसको रिलेट किया गया और उसी पे उसकी नॉमेनक्लेचर्स भी रखी गई है. सो दिस इज हाउ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वुड बी फाउंड. और इसके डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें जो रीजन में पाए जाते हैं, दैट इंक्लूड इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री ऑफ चाइना. Now, record sugar export help reduce cane dues, important for your general studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors. So recently, the central government has announced incentives किसके लिए? Sugar mills के लिए, in form of additional domestic sale quota to those who export sugars. जो सुगर्स को एक्सपोर्ट करेंगे या फिर अपने कमोडिटीज को इथेनॉल मेकिंग में लाएंगे, उसको गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी फॉर दिस कमिंग स्टार्टिंग सेशन अक्टूबर 2021-2022 से. सो कमिंग नेक्स्ट 2 months गवर्नमेंट वुड बी स्टार्टिंग दिस incentive process if they are ready to divert the sugar in ethanol making. So as we know, India is a world second largest sugar producing country और कंजप्शन के हिसाब से जितनी कंजप्शन जितनी हमारे प्रोडक्शंस है, कंजप्शन उससे काफ़ी कम है, राइट. सो वी हैव अ गुड नंबर ऑफ प्रोडक्शन बट कंजप्शन इज लेस, तो काफ़ी सरप्लस इंडिया में बचती है. नाउ रिकॉर्ड शुगर एक्सपोर्ट की अगर बात करें, सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, जो शुगर मिल्स हैं दे हैव सरपास्ड 60 लाख टन एक्सपोर्ट टारगेट दिस ईयर, मेकिंग इट ईजियर टू पे द शुगर केन टू द फार्मर्स. और ये दिस ईयर वाज लेस देन 9,000 करोड़ रुपीस. पेंडिंग ड्यूज की अगर बात करें, फार्मर हैज लेड टू प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट इन द वेस्टर्न यूपी एंड पंजाब. मोस्ट ऑफ द फार्मर इन basically western UP were not actually getting their due which was kept with the lenders and other people. So this is the reason they were protesting, and the equal situation arises in Punjab also. तो सेंटर ने डिसाइड किया कि वो इनकरेज करेंगे खास करके जो ज़्यादा लेवल पे क्रॉप्स की, खास करके जो शुगर केन की प्रोडक्शन हो रही है उसको एक्सपोर्ट करें या फिर इथेनॉल प्रोडक्शंस में लाए. हाई डिमांड, no, definitely high demand is there. A global price have spiked substantially. Last month से अगर देखें तो जो sugar cane की price है that is also increased in the international market. There is a huge demand. तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो डोमेस्टिक मिल है वो साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट विद द इम्पोर्टर्स फॉर द नेक्स्ट सीजन टू हैव बेसिकली एक फिक्स्ड प्राइस पे, या फिर एक जो खास करके 2 कंपनीज या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर आप एग्जाम्पल है वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते. Now, along with the diversion of ethanol productions, government sees कि जितने भी permanent solutions हैं, जो surplus stocks हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट रेवेन्यूज के फॉर्म में हो या पार्शियल पे ऑफ करने की बात हो शुगर केन फार्मर्स को, सो इट वुड बी इजी कि उनके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट एलोकेट किए जाएंगे, एक प्राइस फिक्स की जाएगी कि इतने में आप सेल करेंगे, सो दैट दे कैन गेट द मिनिमम सपोर्ट विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. वैसे शुगर केन के लिए गवर्नमेंट FRP देती है, फेयर रेगुलेटिव प्राइजेज हैं, क्रॉप्स के लिए MSP है, नो. सो इस तरह के कुछ अलग से प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे हुए हैं, बट डेफिनेटली एक्सपोर्ट इज समथिंग विच वुड बी प्रमोटेड, एंड एट द सेम टाइम इथेनॉल के लिए भी चीज़ों को यूज़ करना गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है. Now, monthly quota for sale, they have currently fixed the quota. So, government currently fix a monthly quota for the sale of sugar to the domestic market. On average की अगर बात करें 21 lakh ton of the quota is fixed for monthly sale of a meal. So, हर एक meal के से इतने tons of sell could be there. And according to ministry, some sugar mill have also signed forward contract जहाँ पे वो export करेंगे आने वाले season से, right? So the global sugar prices have increased substantially per month की बात करें, and there is a huge demand of the Indian raw sugar, right? So this is something which is important कि इंडिया में अगर productions हो रही है तो उसकी diversions हो, export हो, ethanol में भी utilize की जा सके. Now center monitoring booster dose move in US, basically जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसीजन लिया है बूस्टर शॉट्स के लिए,
तो क्या इंडिया भी इसको कंसिडर करेगी? यहाँ पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए जा रहे हैं एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ओपन टू दैट, बट द फैक्ट इज़ दैट अभी भी जो सिंगल डोज वैक्सीनेशन इंडिया में वो काफ़ी कम है। ऑलरेडी ऐसे वैक्सीन तो डबल डोज में है, बट अभी भी जो सिंगल डोज वैक्सीन हैं वो पूरे लोगों को अच्छे से नहीं मिली है, द कवरेज इज़ नॉट दैट मच। So recently, the Union government, basically Union Health Ministry ने कहा है they are closely watching the development of United States। जिस तरह से यूएस ने डिसाइड किया है कि वो अपने मास पॉपुलेशंस को वैक्सीनेट करेगी, क्योंकि यूएस ने बहुत ज़्यादा अपने ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशंस को 2 बार वैक्सीनेट कर दिया, तो उनके लिए तीसरा डोज देना आसान होगा। बट हमारे कंट्रीज़ में क्या है, फर्स्ट डोज के पॉपुलेशंस कम है, सेकेंड डोज के उससे भी कम है, दोनों डोज जिन्होंने लिया हुआ है फर्स्ट प्लस सेकेंड। सो दिस इज द चैलेंज विद इंडिया, राइट? फर्स्ट प्लस सेकेंड वाले पॉपुलेशंस कम है, सो रिलेक्टेंसी वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे थर्ड डोज लाना इट वुड बी वेरी टफ टू इम्प्लीमेंट इट एंड इट कैन बी वेरी इंटरमिंगल और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगी लोगों को। सो डॉक्टर इन इंडिया आर एडवोकेटिंग फॉर द बूस्टर शॉट्स, बट स्टिल देयर आर सम रेगुलेटरी बॉडी दैट हैज़ टू अप्रूव दिस प्रपोजल। सो रिसर्च पेपर में ये स्टडीज़ फाइंड की गई कि थर्ड डोज जो है वो हेल्प करती है, अगर 6 से 8 मंथ के इंटरवल में दी जाए तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी काम करती है। एंड डॉक्टर हैव ऑब्जर्व्ड कि जो बूस्टर शॉट है दैट वुड बी रिक्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर, राइट? जिस तरह से म्यूटेशंस चेंज हो रही है, अगर बात करें उसके लिए बहुत ज़रूरी है। WHO के स्टैंड की बात करें, WHO ने कहा है कि लो और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी होगी, क्योंकि अभी भी हर एक कंट्री में वैक्सीन गैप काफ़ी ज़्यादा है। एंड सिनेरियो अगर बात करें यूएस की मैंने आपको बताया मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है, सो वो दे कैन स्टार्ट विद द बूस्टर डोजेस। नाउ ओवरकमिंग द म्यूटेशन थ्रेट, जिस तरह से वायरस में म्यूटेंट हुई, अलग अलग डेल्टा वेरिएंट, बहुत सारे अल्फा वेरिएंट, दीज आर समथिंग विच वाज देयर। तो इस म्यूटेंट को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास एक सॉल्यूशन बचती है दैट इज द बूस्टर शॉट। So once we have a booster shot, we can overcome the strain and the other mutation that is occurring across the globe, right? So this has to be decided whether it would be administered on yearly basis या फिर हर एक पर्सन्स के हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट इसको कंसिडर कर सकती है। बट वी नो दैट दिस वायरस इज नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गेट ओवर, राइट? ये वायरस रहेगा और ये लंबे टाइम तक रहेगा। वी हैव टू गेट एडॉप्टेड ना, लोग इस पे रेजिस्टेंस कर लेंगे एंड फाइनली इफ दिस वायरस म्यूटेट we would have some booster shots, right? So this is pretty clear। जब भी किसी भी पेंडेमिक में कोई वायरस आई है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, उसकी एग्जिस्टेंस लो हो जाती है और ह्यूमन की इम्यूनिटी डोमिनेट करने लग जाती है उस पर, राइट? सो दिस इज हाउ द वायरस फंक्शंस। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की अगर बात करें, सो इंडिया वुड हैव टू टेक सीरियस लुक। यहाँ पे एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि हमें एक बहुत ही सीरियस लुक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशंस हैं उसको अगर बूस्टर डोज दें तो उनकी एंटीबॉडीज़ के लेवल भी हाई होंगी। Now, the other news, this is basically an editorial that is back to basics, important for general studies paper 2, issues related to development and management of educations। सो इस एडिटोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई है एजुकेशन को लेकर के। सो आई हैव सेग्रीगेटेड इन 6 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक। पहली तो बैकग्राउंड, दूसरी पेंडेमिक और ड्रॉप आउट की क्या रेट रही है पेंडेमिक की वजह से, इश्यूज टू बी एड्रेस्ड, नीड फॉर स्किल टीचर्स, एक स्किल टीचर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, वर्किंग इन रूरल एरियाज और वे फॉरवर्ड। और पूरे एडिटोरियल की थीम की अगर बात करें, रोड मैप फॉर होलिस्टिक एजुकेशन पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, राइट? आई हैव कंसिडर्ड दिस एडिटोरियल बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रेलिवेंट फॉर मेनी पेपर्स इन जनरल स्टडीज पेपर 3 and also in essay. All other editorial were pertaining to Afghanistan issues and some other issues which was already being discussed with you. तो repetitions करने की ज़रूरत नहीं है. That is the reason I have considered this editorial. Now, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की अगर बात करें तो नेशनल वाइड सर्वे ने कंडक्ट किया है। बेसिकली ये कंडक्शन की गई थी लीगो फाउंडेशन विच इज़ इन डेनमार्क। दे सेड दैट स्टूडेंट गिव इम्पोर्टेंस टू पीयर इंटरैक्शंस, जिस तरह से वो अपने जो कलीग्स के साथ पढ़ते हैं, एक गुड टीचर्स, फन लर्निंग कंटेंट, नॉलेज जो गेन होती है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से स्टूडेंट की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, राइट? सो इफ़ यू आर अगर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस में रहते हैं, अगर आप डीएम हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, और आपको अगर एक मौका मिले कि किस तरह से एजुकेशन को वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल में सुधारा जा सके, तो यू कैन इम्प्लीमेंट दिस ऑल्सो, राइट?
सो यूनिसेफ ने कहा है चिल्ड्रन वांट टू गो बैक टू स्कूल बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक. No, many country has restriction, many state have imposed restriction, and the school is not fully functional as of now. बात करें पेंडेमिक और ड्रॉप आउट रेट की, तो अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्टिमेट्स जो पेंडेमिक है और लॉकडाउन है दैट हैज़ लेड टू द अलार्मिंग ड्रॉप आउट. माइग्रेशंस ऑफ चाइल्ड की अगर बात करें फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे फीस. कई ऐसे बच्चे थे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे बट उनकी फीस फादर्स की इनकम ना होने की वजह से या उनकी फैमिली में किसी की जॉब चले जाने की वजह से वो प्राइवेट स्कूल से उनकी ट्रांसफ़र गवर्नमेंट स्कूल में कर दी गई बिकॉज ऑफ द मनी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द नॉट सफिशिएंट फी दैट वर एबल टू पे. Increase abuse to home and inadequate nutrition were some of the causes. So pandemic had devastated the education system in our country. इश्यूज जो एड्रेस करने की ज़रूरत है यूनिसेफ ने कहा है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. यूनिसेफ हैज़ रेज्ड सेवरल इश्यूज रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन and children dependent on their age group and gender need to consume almost 1000 to 3000 calorie per day. How close the India mid-day meal schemes to be addressed. यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. UNDP ने कहा है कि UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक बेसिकली स्टूडेंट हु फॉल बिहाइंड द स्ट्रगल इफ द लेवल ऑफ द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज कंसिडरेबली learning the level. So definitely we have to increase the level of educations. At the same time the quality of teachers need to be improved. और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी लास्ट ईयर में उसके पेडोलॉजिकल फ्रीडम्स टू टीचर्स को अगर देखी जाए कंटेंट हेवी करिकुलम फोर्सेस इंस्ट्रक्शन एक कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की बात की गई है टीचर और स्टूडेंट के बीच में सो दैट अ हेल्दी कंटेंट ट्रांसफर एंड अ नॉलेज कैन टेक प्लेस बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट. नीड फॉर स्किल टीचर्स ये बहुत ही ज़रूरी है. जो टीचर्स स्कूल्स में एजुकेशन दे रहे हैं दे नीड टू बी इक्वली एजुकेटेड इक्वली स्किल्ड. तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2009 की जिसमें NEP 1986 के बारे में कही गई है एंड द स्टेटस ऑफ टीचर्स रिफ्लेक्ट सोशियो कल्चर इथोस and it is said that no people can rise above the level of teachers, right? So this is very important that teachers has a substantial role to play in our society. He can be a role model but the fact is that he need to be equally skilled, right? और NEP में ये चीज़ें इंटरेस्ट की गई कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ऑफ द किंडर चिल्ड्रंस और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ जो पीपल हैं खास करके टीचर्स की अगर बात करें जो आंगनबाड़ी टीचर्स हैं हेल्पर्स हैं उनकी भी सैलरीज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है. फ्रॉम 10,000 जो 5,000 थी उसको 10,000 करने की ज़रूरत है एंड फॉर 5,000 सब्सटैंशली एक इंक्रीज हो पैसे में भी ताकि जो टीचर्स है दे नीड टू बी इक्वली मोटिवेटेड टू वर्क. मनी गिव्स मोटिवेशंस एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वुड डेफिनेटली रिफ्लेक्ट दैट इन अ सोसाइटी. वर्किंग इन रूरल एरियाज की अगर बात करें स्लाइटली जो 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए इंडिया को वॉर फुटिंग में काम करने की ज़रूरत है. एंड वी नीड टू एक्नॉलेज कि जितने भी एजुकेशनल टेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो हायर कॉग्निजेंस को रेट करें, स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म दे, पर्सनल सपोर्ट दे ताकि स्टूडेंट उसके बेनिफिट्स को पूरी तरह से ले पाए. वी नो दैट इंडिया में अभी भी जो डिजिटल डिवाइड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया. सो दैट नीड टू बी completely cut down. And on the way to mobilize the student, higher educations contribute to 6 month in governance sponsored program. गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कई ऐसे प्रोग्राम भी स्पॉन्सर किए हैं जहाँ पे उसके बेनिफिशियरीज को हमें फाइंड आउट करनी होगी एंड वी हैव टू प्रोवाइड द एक्चुअल बेनिफिशियरीज who have been privileged to get that, right? So finding the underdeveloped areas or education of the child and children is very important. Now some way forward, it is important कि India work करे to strengthen the fundamental education of the children. A private company should also sponsor mentorships, खास करके ऐसे programs पे जहाँ पे हर एक मंथ उनके टेक्नोलॉजी खास करके जो नॉलेज है जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए किसी स्पेसिफिक फील्ड्स में. And this will have a transformative efforts in all participants involved. Current अगर solutions की बात करें that appear to be designated in the cloud without adequate exposure to the ground. और ability की बात करें ability to successful satisfy the sustainable development goal 4 की जो targets है उसको achieve करना एक priority होगी इंडिया के लिए जहाँ पे वो अपने स्कूल एजुकेशन का टारगेट को भी फुलफिल कर पाएंगे.
So it is very important SDG के जितने भी goals हैं that has to be achieved. And if you are writing in mains paper or in essay paper, you have to clearly demarcate the numbers also. क्योंकि जितने भी goals हैं SDG के वो आप याद कर लो. वो सारे goals आप अगर exams में लिखोगे that would be very important, right? So if you're getting any questions from SDG, do mention its number. That will give you an additional edge in your answers, right? Now moving towards the MCQ of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For the first question of the yesterday, the correct option is C. For the second question, the correct option is B. Now the question of the day, Carbon Watch app was recently launched by which among the following state? So what you have to do, you have to write the correct answer in the comment section down below. Second, consider the following statement about Defence Acquisition Council. It is a constitutional body. The Prime Minister of India is the chairman of this council, right? So again, you have to choose A, B, C, D as a correct option and write that in the comment section. If you have any suggestions regarding the questions, type of question you want, any specific section question you want, do let me know in the comment section down below. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.